لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں۔ عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں، ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ناراضگی ہوگی تو سوری پلیز۔ میرا کام ہے سوال کرنا، اس لیے میں اس پہ کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اور حقیقت میں کچھ معاملات اسی طرح ہی نظر آ رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہیں مسلم لیگ نون کے علاوہ بھی وہ کیوں نہیں ایک لائن پر کٹھی ہوتے؟ خاص طور پر آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے ہی حالات ابتر ہو گئے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی اور دیگر معاملات سے اس حکومت سے کیوں نہیں جان چھوڑے؟ دیکھیں اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس دو پلیٹ فارمز ہیں، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے اور متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے، اور وہ دونوں پلیٹ فارم بڑے متحرک ہیں۔ اور ہم نے آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ اپنے جوائنٹ سیشن میں جس طرح بلڈوز کیے انہوں نے ای وی ایم اور دوسرے قوانین کو، وہ ایک سیاہ تاریخ تھی پاکستان کی پارلیمان میں۔ اور بدقسمتی سے اسپیکر صاحب حکومتی بینچوں سے پوری طرح ملے ہوئے تھے اور بالکل ان کی مٹھی میں تھے۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے پوری طرح اپنی آواز اٹھائی اور متحدہ اپوزیشن تمام آئینی اور سیاسی اور قانونی جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ہم اس کو بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متحرک بھی ہوتے ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے، ایک لوگوں جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر دیتے ہیں، پھر کون سی ایسی فون آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کوئی اسپتال داخل ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے، کوئی باقاعدہ اسلام آباد سے لاہور آپ کے ہاسپٹل سے علاج کرانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ دوسرا چھوٹا سا ایک معصوم سا سوال یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیا ڈلواتے ہیں؟ پیٹرول جب ڈلواتے ہیں 145 ارسلان صاحب، آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن میں الحمدللہ مکمل حاضری تھی تمام پارٹیز، متحدہ اپوزیشن کے پارٹیز کے ممبرز کی، ہماری 100% تھی مسلم لیگ نون کی الحمدللہ۔ باقیوں کو بھی صرف چند لوگ ہمارے جن لاہور کے جن صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کا آپریشن ہوا تھا، وہ آئی سی یو میں تھے۔ تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں۔ یہ اس دفعہ متحدہ اپوزیشن نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یکجاں ہو کے انہوں نے مقابلہ کیا۔ میں سب پارٹیز کو، ان کی لیڈرز کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو سب کا تیل ہو جاتا ہے بالکل۔ اپوزیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اب لوگ آپ کی طرف دیکھ لیں کہ 9 مارچ کا ذکر کیا گیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائنل اسٹریٹجی ہوگی وہ اپوزیشن کی جس سے اس حکومت سے جان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ کم ہو؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے، میں نے ساری باتیں گنوا دی ہیں، کوئی میں نعرے بازی نہیں کر رہا، میں حقائق اور بہت سخت اور ہارڈ اینڈ ہارش فیکٹس کی بنا پر میں نے بات کی تھی۔ تو یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ پیچھے جو راول پنڈی میں کافی ایکٹیو رہے ہیں، ان کا رزلٹ کب تک آنے کی ضرورت ہوا ہے جو آپ کی میٹنگ اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں؟ میں اسلام آباد میں تھا، راول پنڈی میں نہیں تھا۔ یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے اڑائی ہے۔ اگر راول پنڈی جانا شہر ہے ہمارا، جانا ہوگا تو ارل جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ حکومت جو ہے عوام تک آ چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے پاس کیا پلان ہے، کس طرح حکومت کو گھر بھیجیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں اپنا ایک سے زیادہ آئینی اور قانونی ٹولز اویلیبل ہیں۔ سیاسی ہم لوگ ہیں، سیاسی طور پر سوچتے ہیں اور سیاسی طور پر ہم حکمت عملی بناتے ہیں۔ ہم نے ہمارے پاس آپشن ہے ان ہاؤس چینج کی، بالکل آپشن ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے، اور جب بھی مناسب وقت آئے گا آپ کو ہم بتائیں گے۔ اور بھی ہمارے پاس جس طرح مہنگائی کے خلاف ہم یقیناً ہم کمر بستہ ہیں اور ہم ان مہنگائی مارچ نکالیں گے انشاءاللہ، اور حکومت کو ہم یقیناً
नाक से चने चलवाएंगे। मियां साहब ये दाखिला कहते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन है दो टोक फैसला है कि ईवीएम के जरिए होंगे, जबकि पीडीएम तमाम जमातें कहती हैं कि ईवीएम के लिए इलेक्शन नामंजूर है। क्या आप ईवीएम के जरिए इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे या बाइकाट की तरफ जाएंगे? देखें, ईवीएम के मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ईवल विशेस मशीन है, कुछ लोगों ने इसको कुछ और नाम भी दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम कानूनी मामला था। आप देखें कि नवाज शरीफ की सरबराही में, ये रिकॉर्ड की बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते हैं 2017 में, और 16 से उसकी शुरुआत हुई 17 में, और ये पीटीआई कंटेनर पे भी चढ़ी हुई थी और उन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मुशावरत में भी शामिल थी। 117 इजलास हुए हाउस कमेटी के, पार्लिमानी कमेटी के 117, और विदाउट एनी एक भी उसमें डिसेंशन नहीं थी, और मुतफ़क्का तौर पर वो हमने कानून पास किया। क्यों? कि वो आज हम हुकूमत में, कल कोई और होगा, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, पाकिस्तान का फ्यूचर इससे मुंसलिक है। जिस तरह जो फैटफ जो है, हमने वो बिल पास किया, ऑपोजिशन ने उसमें हिस्सा लिया, इसलिए कि पाकिस्तान का जो नाम जो है वो एट स्टेक है। अभी तक हमने वो फैटफ बिल पास किए, सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। वो हम जानते हैं क्यों रखा जा रहा है, कि एक आलमी एक प्लान है, उसके साथ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखें और उसको पाकिस्तान को दबा के रखें। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि मुल्क की वसीतर मफाद में हमने, जबकि इमरान नियाज़ी को एक ही चीज़ आती है कि मैंने अपोजिशन को किस तरह दीवार से लगाना है, बल्कि चुनना है दीवार से, और उसके बावजूद भी हमने फैटफ के ऊपर हमने दिल पर पत्थर रखकर फॉर द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट वी कोऑपरेटेड, और हमने वोट डाला उसके लिए। इसी तरीके से इनको चाहिए था ईवीएम के ऊपर बताते, हाउस को एतमाद में लेते, उसकी बाकायदा वहाँ पर उसको जितनी भी उसकी क्वालिटीज़ थी उसकी प्रेजेंटेशन देते, मुशावरत करते, चाहे उसके लिए 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, क्या 4 महीने लग जाते, 6 महीने लग जाते, कोई हेवन वॉज नॉट फॉलिंग, लेकिन उन्होंने रातों रात उसको बुलडोज किया, इसलिए कि उनकी इसमें जो उनकी बदनीति सामने है कि हमने किस तरह इसको यूज़ करना है। जिस तरह 2018 में एक जो RTS बंद हो गई थी, इस तरह ईवीएम भी बंद हो सकती है, और उसमें बेशुमार अपना ममालिक ने इसका जो इस्तेमाल बंद कर दिया। जर्मनी जो कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से कोसों मील आगे है, जर्मन जो हाईएस्ट कोर्ट है उसने कहा कि ईवीएम जो है ये इसको बंद कर दें आप। ऑपरेटर तो अब हज़ारों चाहिए होंगे ट्रेनिंग के लिए जी। ओवरसीज पाकिस्तान में वोट का तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि 40 सीटें जो हैं 40 वो असर इस पर डालेंगी, और वो पीटीआई के वोटर्स, ये भी उसी धांधली का हिस्सा है पीटीआई का। परवेज बशीर साहब ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर के ताज हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, यकीन करें जितनी वो पाकिस्तान के लिए नेक नामे के लिए काम करते हैं, वी ऑल सैल्यूट देम। उनका हक है अपना वोट का, उनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन हमें उसके तरीक़ेकार से इख्तलाफ है। यानी ये कहते हैं कि जहाँ जो है कोई ट्रैवल कर रहा है, कहीं अपने रहता है लंदन में है, वो अमेरिका में होगा, वहाँ वोट डाल सकता है। भाई हम कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वहाँ पर जो तादाद है उस हवाले से फार्मूला बना लें, उनकी जितनी सीटें बनती हैं वो उनको एलोकेट कर दें, वो 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, और वो खुश होंगे कि वहाँ के लोग खुद पार्लियामान के मेंबर्स बनेंगे, नेशनल असम्बली के मेंबर बनेंगे, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, सेनेट के मेंबर्स बनेंगे। इससे ज़्यादा उनको क्या खुशी होगी। लेकिन ये इमरान खान हुकूमत की बदनीति है, ये है उनका जो अपना इसके पीछे एक घिनौना प्रोग्राम कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटों को
धांधली के जरिए अपने बक्सों में डलवाना, ये कौम इस दफ़ा नहीं होने देगी। जैसे फॉरेन फंडिंग में किया उसने, जैसे उनके पैसों को जिस तरह फॉरेन फंडिंग में उन्होंने किया। अब आज इस प्रोग्राम के हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को, जनाब क्या नाम उनका, राजा सिकंदर सुल्तान, मैं आपको गुजारिश करूँगा कि खुदारा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें, कौम को बताएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो दिन रात सबको चोर और डाकू कहते हैं, बताएं कि उनमें से किसने डकैती की और चोरी की और कौन हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक से वो फंडिंग लेके आया, ये कौम को बताएं। राजा सिकंदर साहब, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, अगर आप इसमें डिले करें तो फिर मैं मजबूर हूँगा मैं आपको एक और ख़त लिखूँ। अभी आपने फरमाया कि जॉइंट पार्लियामेंट का जो सेशन था उसमें बिल सारे बुलडोज किए गए, दिस इज अ फैक्ट, उसमें पास करवा लिए गए। तो अब जो मिनी बजट आएगा तो आप और अपोजिशन लीडर कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये आप उसे बुलडोज नहीं होंगे? शौकत तरीन साहब ने कह दिया। देखिए, मैंने कहा था अपने बजट के मौके के ऊपर, आपकी सिर्फ याद रहने के लिए, इसके बाद कई मिनी बजट्स आएंगे जो कि इन 6 माह में आ चुके हैं। कई मिनी बजट, तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, टैक्सेस लगाए और ये कहते थे कि ये इसके बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा और कहा कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, उन्होंने ख़ुद फरमाया कि मैं मिनी बजट लेके आ रहा हूँ। तो इसके बाद कोई बात बाकी रहेगी कि ये तारीख की वो हुकूमत है जो धरोहगोई में सबसे आगे है, इसकी कोई सानी नहीं, इनका यू टर्न में कोई सानी नहीं है। और अगर मुल्क की कोई बेहतरी होती तो हम बता देते, मुल्क का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मईशत का जनाजा निकाल दिया है और दिन रात झूठ बोलते हैं। जी मंसूर शिवाजी साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज जो है वो सियालकोट के वाक़े से किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने इसको कर। मेरी कल स्टेटमेंट आ गई थी, कल मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आ गई थी। लेकिन आपके साथ ही एस एल इकबाल साहब बैठे हैं जो इस मजहबी इंतहापसंदी का खुद भी शिकार रहे हैं। आपकी पार्टी के और भी लीडर्स हैं जो मजहबी इंतहापसंदी का शिकार रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले दिनों हमने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो कुछ हमने देखा, आपकी पार्टी इस तरह लग रहा था कि साइलेंट मोड के ऊपर है, आपस में कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। और अभी जब 7 महीने साहब बाहर निकले तो आप लोगों की पार्टी की जानिब से उनको फूलों का गुलदस्ता तक भिजवाया गया। क्या इसका, और शायद वासी साहब ये कहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आप लोग उनके साथ इत्तेहाद भी कर सकते हैं अगर करना होगा। इज दिस समथिंग दैट पार्टी सीरियसली? गुजारिश है मैं आज कर, देखें, हमने, हमारी तारीख गवाह है, मियां नवाज शरीफ की फ़िलासफ़ी है कि हमने ऐसे इश्यूज़ को, खान साहब, कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको सियासी रंग नहीं दिया। आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है और उसके बदले में हमने बहुत नुकसान उठाया है, आप जानते हैं। उसकी तफसील में जाने का ये वक्त नहीं है, बट यू नो इट वेरी वेल कि हमने उसका बहुत नुकसान उठाया। लेकिन पिछले 3.5 सालों में इस तरह के एक से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। जब PTI की हुकूमत बनी 2018 में, तो चंद महीनों में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में धरना हुआ था। मियां नवाज शरीफ ने कहा और हमारी कि वी विल नॉट पोलिटिसाइज दिस थिंग, क्योंकि आप देखें कि अब यानी दांतों से ये गुंजल को खोले जा रहे हैं। ये कौम, इसका खमियाजा कौम भुगत रही है और हमारी नस्लें भुगतेंगी, खुदा न खास्ता। तो मैं समझता हूँ कि आप बड़े ही समझदार एंकर हैं और बड़े जी शऊर हैं। हमें इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। ये मामला बड़ा सीरियस इशू है और इसके लिए सीरियस स्टेप्स उठाने होंगे, वगरना कौम को आगे ही नाकाबिल तलाक़ी नुकसान आप उठा चुकी है और इसका नुकसान जो है वो उसकी कीमत फिर इट विल बी अनइमेजिनेबल। इनको गोली लगी, अल्लाह ने इनको बचाया। और आपको याद है कि 2009-10 की बात है, रायबंद में जब मियां नवाज शरीफ जा रहे थे तो वो ब्रिज के ऊपर वो बम फटा और रब ने उनकी ज़िंदगी बचाई। हज़ारों लोगों ने शहादतें दी हैं अपना KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। मेरे जो खानज़ादा शहीद जो मिनिस्टर थे होम के, वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। हज़ारों अपने पुलिस के लोगों ने, सिपाहियों ने, फ़ौज के अफसरान ने, सिपाहियों ने, जवानों ने, माँओं ने, बेटों ने, बेटियों ने, हम कहाँ तक ये लाशें उठाते रहेंगे? आई थिंक वी हैव टू गिव इट अ फाइनल शट अप कॉल वेरी इफेक्टिवली। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप यकीन कर लें कि
this will be the biggest blunder this nation will be committing. अच्छा इशराक साहब, हम सब महंगाई से बहुत मुतासिर हो रहे हैं और आपने अच्छी तजावीज़ दी है कि मिलकर इस सारी सूरत-ए-हाल को हमें कंट्रोल करना है, लेकिन उन कुव्वतों को कैसे समझाएंगे जो हुकूमत की पुष्ट पे खड़ी है कि अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो आगे चलकर हमारा दिफा कौन करवाएगा? देखें, बात लंबी हो जाएगी। खाद की आधी कीमतें किसने की? नवाज शरीफ ने, अरबों रुपए खर्च करके। ट्यूबवेल, ज़रूरी ट्यूबवेल, उसके ऊपर आधी कीमत पे बिजली किसने मुहैया की? नवाज शरीफ के दौर में, अरबों रुपए की सब्सिडी के ऊपर। आप सब जानते हैं, मैं इसमें, और ये जो फर्टिलाइज़र खाद, अरब रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो इतना नहीं देखा कि 20,000 अरब ले ली हो और कौम की ना एक ईंट लगी हो, ना ज़राअत को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट क्रॉप थी कॉटन की, 5.9 मिलियन। कहाँ 12 मिलियन पाकिस्तान आप कॉटन क्रॉप ग्रो करता रहा, कहाँ 5.9 मिलियन। इस साल ये कहते हैं कि जनाब बहुत बेहतर, लेकिन फिर भी जो हमारा आखिरी साल था उससे भी शायद कम प्रोडक्शन है कॉटन की। तो मैं समझता हूँ कि मैं कौन सा शोबा गिनवाऊँ। देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, खौफ तरदीद, अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो भाषा डैम की तकमील आज किसी न किसी जगह पहुंच चुकी होती। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन ट्रैक रिकॉर्ड। जो हमने ये मंसूबे बिजली के बनाए, मैं उनकी बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ। इन्होंने जनाब बड़े शौक़ से, इमरान खान न्याजी ने धूमधाम से बस का फीता काटा था। कहाँ है भाषा डैम? आज 4 साल गुजरने को हैं। वो डैम फंड कहाँ गया? किधर वो डैम फंड? डैम के कोई बात क्यों नहीं करता? मैं आपको कह सकता हूँ विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर PMLN की गवर्नमेंट होती, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती, तो भाषा डैम बफजले तारा आज रूबा अमल होता। उसकी एक बड़ी सॉलिड पिक्चर पूरी कौम देख रही होती, जिस तरह 2013 और 18 के दरमियान कौम ने देखी कि मई 2018 के खात्मे से पहले मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था 20-20 घंटे। आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं PDM में। PDM के पास मैं PMLN में एक्टिव हूँ और PDM में भी हूँ और मुतहदा अपोजिशन में भी हूँ। सर ये बताइएगा कि आपके पास अक्सरियत हुकूमती पार्टी और उनके कारकुनों से ज़्यादा है, लेकिन क्या वजह है जब भी कोई अदम इक़बाल की बात आती है तो आप अपोजिशन के लोगों में से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ नहीं आ पाते? तो क्या आप समझते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं क़यादत को या अवाम को धोखा दे रहे हैं, अपने मैंडेट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें आइंदा इलेक्शन में टिकट देंगे? आप एतमाद रखें, अदम ख़त्म हो गया आप बिल्कुल। जी शफीक साहब जी और बड़ी सख्त बयानबाजी भी दोनों जानिब से की जा रही है और खासतौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है हंगामी के लिए। तो क्या 2 पार्टी सिस्टम दोबारा नाफिज हो गया और पीपल्स पार्टी दोबारा आमने सामने आ गए? देखें, इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, कल परसों ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा शुरुआत होंगी इंशाल्लाह। जी मैंने दिल पे हाथ रख लिया है। 1 to 10 में से कितना रैंक करेंगे? हुकूमत की क्या कारकर्दगी है वो तो भाड़ में जाए नजर आ रही है। ऑपोजिशन के अंदर आप अपने आप को कैसे रैंक करेंगे? अपने आप कैसे रैंक करेंगे अपोजिशन की? From 1 to 10 नंबर 10। वो तो मैं आई लीव इट टू योर जजमेंट। बड़ी अच्छी मूव जो है हुकूमत ने तलाक बनी थी कि हुकूमत के फॉर्म उखड़ गए थे, लेकिन उसके बाद ये इतना सुस्त हो गया काम। अब लगता है कि क्या नून लीग देरी तौर पर तैयार हो गई है कि खान साहब की हुकूमत जो है 5 साल पूरे करेगी? देखें, 22 करोड़ अवाम अपना सरापा एहतजाज हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं खुले ऊपर आसमान की तरफ। माँ, बेटी, बहन, बुजुर्ग, मरीज, यतीम, बेवा बद्दुआएं दे रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि अगर इस हुकूमत को मज़ीद वक्त दिया गया तो फिर हाथ मिलते रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच। खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।